Hello Cancerians and welcome to your bonus love reading for the year 2025. So year 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या चेंजेस आने वाली हैं. ऑल्सो अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो आएंगे, न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो आएंगे, या आप रिलेशनशिप में कोई चेंज चाहते हैं, या जो भी आप मैसेजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025. लेट्स सी. ऑल्सो कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. ये 2025 के लिए टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी आपकी रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. If this reading found you, then these messages are for you. And if you had a calling to click on this video, then ये messages आपके लिए हैं. So let's see messages for the sign of Cancer. So new love, religious factors, healing from family issues and children. सो यहाँ पे जो मैसेज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो ये कि आइदर जिनके साथ आप अभी करंट कनेक्शन में हैं, करंट सिचुएशन में हैं, उनके साथ आप खुश नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में कोई न्यू लव चाहते हैं. ऑल्सो आपके कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, जिनसे आप हील करना चाहते हैं. कोई आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ चल रही हैं, या आपके स्पाउस के साथ चल रही हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं. एंड I also see that children are involved in the situation and your love life is also being affected by the children. या कोई religious factors involved हो सकते हैं. आपकी love life क्यों नहीं हुई. Yes, आप अगर आप इस वक्त you are in a committed relationship or you want to be in a committed relationship, then आपको अगर ऐसा लगता है that it is not safe for you to love, okay, or it is not safe for you to move on, then आपको ऐसा लगता है that you need to love yourself first. ठीक है, आपको पहले सेल्फ लव, सेल्फ केयर की ज़रूरत है. और आप अपने कोई ना कोई तो फैमिली इश्यूज़ आपके चल रहे हैं, या आपकी चिल्ड्रन की वजह से आपकी लाइफ अफेक्टेड है, या आप इन फैमिली इश्यूज़ से हील करके एक नया कनेक्शन, एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. Show me more messages for the sign of Cancer. Show me more messages for the sign of Cancer. Show me more messages for the sign of Cancer. हो सकता है that you are already in a committed relationship और इस relationship में आप confused हैं, you are on crossroads, you want to take a decision regarding your spouse, or you want to move on from this connection and you can't move on because the children are stopping you, or you have children with your spouse and that's why you can't just move on. But however, you want equal reciprocation and equal give and take with someone. Either you feel a love connection for other person, or you feel passionate about your spouse and you want to be you want to have equal give and take with them, because किसी ना किसी के बारे में तो either this is your own spouse or this is your somebody else in your life, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मैं पिक कर रही हूँ दैट यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय समवन. सो अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आई फील दैट यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट सिचुएशन. सो दैट्स वाई यू वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड दिस कनेक्शन. Show me Cancerian's feelings towards this person. Show me Cancerian's feelings towards this person. Show me Cancerian's feelings towards this person. The signs you are dealing here with are Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and we have Cancer, Pisces, Scorpio. We have Two of Cups, Hermit, the Star, Aquarius, Hermit, Virgo energy, and we have Page of Swords. Bottom of the deck we have Three of Pentacles, Eight of Cups, and Knight
9 ऑफ कप्स। सो थर्ड पार्टी की वजह से आपने किसी सिचुएशन या किसी कनेक्शन से मूव ऑन किया है, और जिस कनेक्शन में अभी आप हैं उसमें आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आप किसी पर्सन को एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं. यू सी दिस पर्सन एज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू. You want to go back to this person, or the other thing could be that you have children with this person, और जिनके साथ आप करंटली रिलेशनशिप में हैं और खुश नहीं हैं. ठीक है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग, बट जिन पर्सन के साथ अभी आप कनेक्शन में उनके साथ खुश नहीं हैं, एंड द चिल्ड्रन कुड बी अफेक्टिंग योर लव लाइफ, एंड यू कांट मूव ऑन बिकॉज यू हैव चिल्ड्रन विद दैट पर्सन, बट यू लव समवन एल्स, और आइदर ये आपके यही पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड यू सी दैम एज अ विश कम ट्रू, एंड दैट पर्सन इज बेसिकली नॉट इक्वली रेसिप्रोकेटिंग टू योर फीलिंग्स. They are not giving you equal give and take. However, you are putting a lot of work and effort. Hermit है तो डेफिनेटली आई सी दैट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर नॉट, आप ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर रहे, ज़्यादा आप बाहर घूम फिर नहीं रहे, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं, या ख़ुद को अकेला ज़माने से रखा हुआ है आपने, क्योंकि किसी को यू वांट टू ऑफर यू योर कप ऑफ लव, and that person is not fully transparent about their feelings and emotions that they have for you. So माजी में हो सकता है आपने किसी कनेक्शन की वजह से मूव ऑन किया हो, किसी से मूव ऑन किया हो. ठीक है, show me this person's feelings towards the Cancerians. Show me this person's feelings towards the Cancerians. So we have Queen of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Wands, Eight of we have Strength, and then we have the Seven of Swords. Bottom of the deck, Two of Swords, Five of Wands, और द नाइट ऑफ वैंड्स. किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हुए हैं, और राइट नाउ यू आर वेरी कंफ्यूज एंड यू आर ऑन क्रॉस रोड्स. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि कोई आपको बहुत बुरी तरह बैक स्टैप कर रहा है, कोई आपको बुरी तरह डिच कर रहा है. somebody is not ट्रांसपेरेंट अबाउट, जो वो अंदर से हैं वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं, जो अंदर से हैं वो अपना आप नहीं दिखाते. And you bring a lot to the table, your energy, and this person is not matching your energy. You want to reciprocate, but this person is not giving you equal give and take. और या फिर आपको आपको या इस पर्सन को आपकी माफ़ी की ज़रूरत है. And you are gathering strength and courage in order to be in a contact with somebody. और वो स्ट्रेंथ और करेज इस वक्त आपके पास है नहीं कि आप किसी से कांटेक्ट कर सकें या किसी को अपनी लव ऑफर दे सकें. बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई एम पिकिंग अप दैट यू आर नॉट हैप्पी इन योर करेंट सिचुएशन, एंड you are married to somebody else, and you are not happy with that person. You want actually someone else, but the children are affecting your love life, and because of your children you can't move or you can't take action. Show me this person's next actions towards the Cancerians. Show me this person's next actions towards the Cancerians. You could be dealing with another Cancer. We have Temperance, we have Chariot, we have the Emperor, Aries energy. Bottom of the deck we have Five of Pentacles, Hierophant, Taurus energy, and the Hangman, that is Virgo energy. So I see forward movement and action in this connection in the long run. ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो मैं इस सिचुएशन में बैलेंस और हार्मनी को मेंटेन होते हुए देख रही हूँ. आपने अपने ईगो इश्यूज की वजह से अगर किसी को छोड़ दिया तो यू वांट टू बी बैक विद दैट पर्सन बिकॉज यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय दैट पर्सन, एंड यू वांट अ रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट. यू वांट टू गिव देम अ कमिटमेंट ऑफर, यू वांट टू गिव देम एन अ लव ऑफर. मे बी पॉसिबल कि आपने ट्रेडिशन या फैमिली ट्रेडिशंस या फैमिली की
दबाव की वजह से किसी पर्सन को छोड़ दिया और किसी और पर्सन को चूज़ किया, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इन योर करंट सिचुएशन. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. So in the outcome, because you walked away from this person, और इन पर्सन के साथ आपका टावर मोमेंट हुआ, बट यू सी देम एज विश फुलफिलमेंट. और इन द आउटकम आई ऑल्सो सी के जस्टिस, कोई किसी को यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक देगा, जस्टिस देगा. कोई फील करता है दैट द अदर पर्सन डिजर्व्स जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस. और डेफिनेटली बहुत नेगेटिविटी मैं पिक कर रही हूँ. माइट बी पॉसिबल कि दैट आपने अपनी ऑप्शंस ओपन रखी हैं नाउ, या आप अपनी ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन की डेविल की एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी है, और आप इनकी नेगेटिव एनर्जी से निकल के एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं. So for some of you, if you are not happy in the current situation, I see you making an offer to somebody else in the long run in the future, and ending this tough cycle and beginning a new cycle with somebody else. So that's all I have for you. Thank you so much, Cancerians. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.